everyone. I am your SST teacher. My name is Kirti Sharma, and in today's video we will discuss about the first chapter of class 7. So without any further delay, let's get started. So our chapter name is Components of Environment. Environment के components. तो components means क्या है? Components क्या होते हैं? Component means part, भाग, अंश, हिस्सा, है ना? तो parts of environment हम इसमें discuss करेंगे. Now the question arises, what is environment? अब हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं environment means पर्यावरण, है ना? But what is पर्यावरण? पर्यावरण means क्या है? So today we will discuss the elaborate meaning of पर्यावरण. पर्यावरण हम समझ सकते हैं कैसे? All that surrounds us, जो भी हमारे चारों तरफ है, that is environment. वो क्या है? Environment है. And it is our basic life support system. ये क्या है? हमारा basic life support system है. Basic life support system means all the things which we require to satisfy the basic needs of our life. ऐसी सारी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत है अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, we get all these things from environment. जैसे कि एयर, वाटर, फूड, लैंड, एनिमल, प्लांट्स, all these things we need to satisfy our basic needs. हमें लैंड चाहिए, हमने घर बनाया हुआ है, हमें एयर चाहिए, हमें पानी, we need everything, and we also need a man-made thing. There are also man-made things which surrounds us. These also falls under the category of environment. Okay, so this was the discussion for environment. I hope you all get this. So now we will discuss our next topic. You can see here, now we will discuss about the groups. The groups in which the environment is divided. So the environment is divided into two groups. How many groups? Two groups. So these two groups are, number one is physical environment and number two is biological environment. तो अब हम देखते हैं physical और biological का elaborate meaning. तो physical environment means all the non-living things. जितनी भी non-living things हैं, these non-living things falls under the category of physical environment. जैसे कि land, water, air. Okay. And now अब क्या बच गया? Biological environment. तो biological, bio means life. Bio means life. तो जितनी भी living things हैं, वो किस में include होती हैं? Biological environment में. Such as plants and animals. Clear? So our next topic is, you can see here, 4 spheres of environment. Environment के 4 spheres के बारे में हम पढ़ेंगे. How many kinds of spheres are there in environment? 4. Number 1 is lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. Now we will discuss them. Number 1, lithosphere. The literal meaning of lithosphere is sphere of rocks. किसका sphere है ये? Rocks का. अच्छा, इसका literal meaning है ये sphere of rocks. But literal means क्या है? Literal means सरल, सीधा, आसान. यानी कि जो सीधे शब्दों में अगर इसका कोई मीनिंग है तो वो ये है कि it is sphere of rocks. The Earth's solid layer is called lithosphere. जो अर्थ की solid layer है वो क्या कहलाती है? लिथोस्फेयर. उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं. और अच्छा, ये लेयर है तो इसकी थिकनेस भी कुछ ना कुछ तो होगी, है ना? कितनी मोटी है, कितनी पतली है, तो इसकी जो थिकनेस है दैट इज 100 किलोमीटर्स. कितनी थिकनेस है इसकी? यस, 100 किलोमीटर्स. अब ये जो लेयर है ये किसी चीज से तो बनी हुई होगी. अब स्फीयर ऑफ रॉक्स है तो इट मीन्स रॉक से बनी होगी. अब 2 kinds of rocks are there. और उन रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? सीमा एंड सीएल. क्या बोलते हैं इन रॉक्स को हम? सीमा एंड सीएल. तो सीमा और सीएल तो रॉक्स हैं. अब हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हाउ वी विल आइडेंटिफाई सीमा एंड सीएल? तो देखिए, सीमा जो रॉक्स हैं दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम.
और Cl जो रॉक्स हैं दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। टफ लग रहा है? ओके, कुछ सरल बनाते हैं। तो सीमा, SIMA, SIMA, सीमा है S फॉर सिलिका, I छोड़ दो, M फॉर मैग्नीशियम। 4 वर्ड है ना, S ले लिया, I छोड़ दिया, M ये छोड़ दिया, 2 S और M, तो सिलिका और मैग्नीशियम। सेकंड इज Cl, SiAl, इसमें भी S ले लिया, I छोड़ दिया, A ले लिया, S फॉर सेम सिलिका, A फॉर एल्यूमिनियम। तो क्लियर, दोनों में ही सिलिका एलिमेंट प्रेजेंट है, SiAl, SiMa। तो जिसमें M है उसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट है, और जिसमें एल्यूमिनियम है उसमें, जिसमें A है उसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। आई होप ये इजी लगा हो आपको ये टेक्निक। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एटमॉस्फेयर। अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। अब as it is clear from its name, atmosphere means air. Atmosphere is the sphere of air. The atmosphere is composed of a mixture of gases which forms an envelope around the earth. Atmosphere क्या है? बहुत सारे एयर जो है गैसेस के ना मिक्सचर से बना हुआ है, बहुत सारी गैसेस के मिक्सचर से बना हुआ है। और इस मिक्सचर ने क्या करा है, अर्थ के सरफेस के चारों तरफ क्या करा हुआ है, एक एनवेलप सा बनाया हुआ है, एक सरफेस, एक लेयर, एक लिफाफा, एक कवर प्रोटेक्शन बनाया हुआ है अर्थ के अराउंड। ठीक है, तो it is a gaseous envelope exceeding about 1600 किलोमीटर above earth surface। ये जो गैसियस एनवेलप है, यानी कि गैस से बना हुआ, गैस के मिक्सचर से बना हुआ एनवेलप है, ये अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर क्या है, अबव है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर, और जो ये एटमॉस्फेयर है ना, ये क्या है, इन्वायरमेंट का मेजर एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या करता है ना, धीरे धीरे चेंज होते रहता है एटमॉस्फेयर, सीजन वाइज चेंज होता है, और साथ ही साथ आवर्स के अकॉर्डिंगली भी ये चेंज होता है, घंटों में भी ये चेंज हो जाता है। जैसे कि हम पहले देखते हैं सीजन वाइज ये कैसे चेंज होता है, समर, विंटर, स्प्रिंग, रेनी, दीज काइंड ऑफ सीजन्स आर देयर। तो इनके साथ साथ एटमॉस्फेयर भी चेंज होता है, कभी हमें सर्दी लगती है, कभी क्या हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो सीजन के अकॉर्डिंगली हमारा एटमॉस्फेयर भी चेंज होता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि आवर्स में, घंटों में ये कैसे चेंज होता है। अब देखिए, आप मानो आप सुबह 5 बजे उठ गए, तो सुबह क्या है लगेगी आपको, थोड़ी ठीक ठंडी सी लगेगी आपको क्या लगेगा, आपका एटमॉस्फेयर काफ़ी ठंडा है। एंड उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही दिन आते जाता है, सूरज की गर्मी जो है बढ़ते जाती है, तो आपको भी क्या लगने लग जाती है, गर्मी लगती है। और ऐसे ही क्या है, कुछ घंटों में ही क्या हो जाता है, आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं it changes accordingly to the seasons and to the hours also. Clear? Now we will understand about the next sphere, that is hydrosphere. Okay student, one more thing, ये जो इनके नेम है, ठीक है, इनके नेम से ही ना हम इन्हें अच्छे से अपने माइंड में बिठा सकते हैं कि इसके अंदर क्या कंटेंट है। सबसे पहले हमने पढ़ा लिथोस्फीयर, उसमें क्या था, लैंड के बारे में बात हो रही थी, रॉक्स वगैरह। एल फॉर लैंड, हमें वो उधर से क्लियर हो गया। अब फिर था एटमॉस्फेयर, ए फॉर एयर। नाउ हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स, यू नो, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो इट मीन्स इट इज द स्फीयर ऑफ वाटर। क्लियर है सबको? अच्छा, तो द वाटर विच इज प्रेजेंट in the earth's surface in the form of oceans, rivers, lakes and other water bodies, these all falls under the category of hydrosphere। ये किसकी कैटेगरी में फॉल डाउन होता है, हाइड्रोस्फीयर की। अच्छा, वन मोर थिंग, अर्थ को हम बोलते हैं कॉमनली वाटर प्लैनेट या फिर ब्लू प्लैनेट। अब हम वाटर को ब्लू प्लैनेट या फिर वाटर प्लैनेट क्यों बोलते हैं, because of the abundance of water present in the surface of earth। अर्थ में क्या है, पर्याप्त मात्रा में वाटर प्रेजेंट है।
कितना, अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर, इसीलिए अर्थ इज नोन एज। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बायोस्फीयर। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बायोस्फीयर के। बायो नाम से पता है, मैंने पहले भी बताया था कि बायो मीन्स लाइफ। बायो मीन्स क्या है, लाइफ। तो बायोस्फीयर का लिटरल मीनिंग क्या हो गया, इट इज द स्फीयर ऑफ लाइफ। ये किसका स्फीयर है, लाइफ का। इट इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन ऑल थ्री spheres of environment. Here written it is, you can see here on the page number 2 of your book. इस यहाँ ये एक नैरो यानी कि पतली सी एक ऐसी जोन है तीनों एनवायरनमेंट के बीच की जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल, वाटर बॉडीज एंड वी द ह्यूमंस, इवन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव हियर इन दिस जोन। ओके, सो दिस इज बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में ही एक टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी। हियर रिटर्न पेज नंबर 4, पेज नंबर 3, फर्स्ट लाइन, आर्ट इज फुल ऑफ डाइवर्सिटीज। ठीक है, तो वैसे बायोडाइवर्सिटीज क्या है? बायोडाइवर्सिटीज इज अ वर्ड मेड अप ऑफ टू वर्ड्स टुगेदर, बायो एंड डाइवर्सिटीज। बायो मीन्स, आई टोल्ड यू अर्लियर, लाइफ, एंड डाइवर्सिटीज मीन्स क्या होता है, विभिन्नता, डिफरेंट थिंग्स। तो डिफरेंट टाइप की जो लाइफ है उससे मिलकर के जो वर्ड बना है उसको हमने बोला बायोडाइवर्सिटी, जिससे हमें क्या पता चलता है कि बहुत सारी लाइफ्स यहाँ रह रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। दिस इज बायोडाइवर्सिटी। और इन बायोडाइवर्सिटीज को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी क्या किया है, जारी किया है, दैट इज इन 1972 में। उसके तहत, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करी है, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क बनाए हुए हैं। ठीक है, सो देयर आर 66 नेशनल पार्क एंड 36 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑल ओवर द इंडिया। नाउ वी विल understand the difference between wildlife sanctuaries and national park. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क तो हमने सुन लिया, पर हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों में भी क्या डिफरेंस होता है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, दे प्रोवाइड द फेवरेबल लिविंग कंडीशन टू ऑल काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल। ठीक है, वो जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल हैं उनको प्रिजर्व करती हैं, सिक्योर करके रखती हैं, कंजर्व करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं और उन्हें क्या प्रोवाइड करती हैं, फेवरेबल लिविंग कंडीशंस, जहां वो अच्छे से रह सके, जो उनके रहने योग्य वातावरण है वो वहां उन्हें प्रोवाइड करा जाता है। और नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क इज नॉट ओनली फॉर वाइल्ड लाइफ, इट इंक्लूड्स ऑल द फ्लोरा एंड फौना ऑल्सो। जो फ्लोरा और फौना है वो भी क्या है, इनमें इंक्लूड होती हैं। जैसे कि फ्लोरा आपका हो गया क्या, वनस्पति, जितने भी प्लांट्स हैं वो, और फौना मीन्स जितने भी एनिमल्स हैं, इन सबको ही प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, ये किसका काम है, कहाँ इन सबको कंजर्व करके रखा हो जाता है, हमारे नेशनल पार्क्स में। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि अबाउट अस, we are human beings, we are, as I told you earlier, we are also a major part of the environment। और हम क्या करते हैं, अपनी बेसिक नीड्स के लिए इन्वायरमेंट का क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। हम इसका अच्छी वे में भी यूज कर सकते हैं एंड बुरी वे में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, बट हमको क्या करना है, जितना हमारी नीड है, जितनी हमें ज़रूरत है, हमें उतना ही इन्वायरमेंट से अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उसका यूज़ करना चाहिए। उससे ज़्यादा एक्सेस में कोई भी चीज़ हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, और किसी भी चीज़ को, किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को हमारी वजह से नुकसान पहुँचे, ऐसी कोई भी हैबिट या फिर कोई भी एक्टिविटी हमको नहीं करनी चाहिए, जिससे कि अर्थ क्या रहे, ठीक रहे, हेल्दी रहे, और हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है उनको भी ये सारी चीज़ें ऐसी ही देखने को मिले जैसे हमें मिल रही हैं। सारी रिसोर्सेज का वो भी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा उठा पाए जितना हम उठा रहे हैं। ओके किड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सब आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।